In our last class, we have seen how to create a material type, and as well as how to define number ranges and how to assign it. Okay. So in today's class also, even what I'll do is like I'll again show you another material. I'll take any one material and I'll show you how to create a material type, and as well as how to create number ranges and how to assign it. Okay. So before this, I just wanted to show you quickly one thing. We discussed the enterprise structure in the last classes, right? So there is one transaction which you should aware of. So if you wanted to see the enterprise structure which you have already configured, if you wanted to see them in a single page, like what company could have created, and which plant is assigned to that company code, and which purchase order or which store location is assigned to that company code. So that we can say we do have two transactions called EC01 and as well as EC02. So with these two transactions, you can see your structure. So let me quickly show you that, and then we will move to our material master part. So here we came into EC01. This you can see in your material also. Structure I'm clicking on, and then navigation. So you can click on OK. You will see here number of plants here. So in this you can choose your plant, whatever your plant is. So what we have created, Tata Motors India, right? Okay. So now we see what is our TM01, Tata Motors India. It's a cloud. What is TM01? Tata G1 is your company code, right? Tata G1, if you can remember. So to that, company. It's a company. So Tata G1 is your company code. Then a plant we have created TAH1. Then your purchase organization. Okay. So this is all about your structure. So you can see the structure, at one place. And another transaction which you have is, okay, let me go back. EC02 you have. Again, you'll come to the same transaction. What objects you have again? If I go down, TAH1, Tata Hyderabad plant. TAH1 is a plant, So this TAH1 plant is assigned to which storage location? SLH1. Okay. Under which company code it is again? See, Tata Motors, and in the purchase organization is TIN1. So in this way, you can check your assignments. If you wanted to check, which one is assigned to which one. When you have multiple storage locations, when you have multiple plants, this navigation will be helpful for you. But now we have created only one and one. So, any of this won't be useful for you. Right. So you're just aware of these transactions. If anybody asks you in the interview, what is the transaction where you can see your enterprise structure and as well as the assignment. So you can say EC01 and EC02. EC01 is a plant structure, you can say, and EC02 is a company code structure, we will say. So these are the two transactions which you need to remember. Okay. So when it comes to materials, I'll quickly go to our material type. So we know that we have a T code called OMS2, and as well as we have a path, SAP AMG, Logistics General, Material Master, basic settings, material types, and define attributes of material type. So this is the one transaction where you can configure your material type. So quickly what I'll do is like, I'll create another material for your reference. You want me to show it again, so I'll do that again. So I'm going to OMS2 now. See, last time what we have configured, if you can remember, what it was, a TROH, raw material I have created. Why? Because mine is a Tata Motors company. I may need raw materials. Okay. So I may need some finished goods also, or I may need some spare parts also. Okay. Someone said me to create spare parts. So like let's create a spare parts one. I wanted to create a spare parts for my Tata company. I can use the existing one, or I can modify it. See, ERACA is your movement type for spare parts. Okay. What I'm gonna do is I'm gonna select this, and what I can do. See here, what you're having, change or display. If you want to change these values of this one, you can click this change or display. Okay. And then what you have here, you wanted to see the details, what it contains, you can click on this. You wanted to create a new one, you can create it freshly here. But you wanted to copy the existing data and you wanted to see some basic modifications. So you can always use this copy one. If you want to delete, you can use this option. If you want to go back, you can use this. So like this, these are the things. So what I'm doing is here, I'm copying the existing one spare parts. Okay. कोई पूछे लास्ट क्लास में ये स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे बोल के, सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर. सो देखो स्पेयर पार्ट्स के लिए क्या बनाएंगे भाई, कुछ भी बोलो, क्या नाम रखेंगे अपन, कुछ भी नाम बोल सकते हैं आप.
टी से शुरू करना है अपन, टी आर SPR रख दे रहा हूँ मैं, टी स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई होने के लिए। टी SPR बोले तो टी स्पेयर पार्ट्स हो गए आपके, ओके, टाटा के स्पेयर पार्ट्स, ओके। यहाँ पे देखिए फील्ड रेफरेंस इन्हें अगेन ROH का ले लिया, स्पेशल इसका रेफरेंस ये हो गया। देन यहाँ पे हमारे को क्या करना था, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना था। तो क्या क्या बेसिक डिपार्टमेंट्स लगाए थे अपन, देखो अकाउंटिंग तो हमेशा होना आपको, क्लासिफिकेशन की अभी जरूरत नहीं है। जब अपन क्लासिफिकेशन डिस्कस करते क्या करना, फिर आके अभी देखो यहाँ पे जो है मैं पूरे यूजर डिपार्टमेंट चूज नहीं कर रहा हूँ, कहीं को, क्योंकि हमको रिलेवेंट नहीं है, इट्स नॉट रिलेवेंट टू अस। बट इफ when we discuss a batch master configuration, when we discuss about violation classes, so this field will be needed for this user department, so that time you can activate this department। जब आप यहाँ पे आके चेंज करके फिर इसको क्लिक करो तो इन्हें सेलेक्ट हो जाता, अब अपने को जरूरत नहीं है, so I am deselecting it। and MRP also I don't need it, but I need purchasing, basic I always need it, okay। and storage I am keeping it, forecasting I'll remove it, quality I'll remove it because I don't need it now, at this stage I don't need it। so whereas also I'm removing plant stocks, storage location stocks, I don't want them, okay, so that's it। so what I'm keeping, always remember at the first, if you wanted to create a basic material, these are the major 4 departments which you always needed. One is your accounting, second is purchasing, third is basic, and fourth is storage. If sales people came and sales department wants to extend your material type to sales department also, they'll keep sales also, okay, but for our MM department we don't need them, we just need this. But you can say, sir, accounting also not our part, why we need it? No, without accounting you can't do any MM transaction. Accounting is needed for us as well as for SD people also, so I have to pick this. And again we have 2 things which you need to understand. One is, one you need to remember is user departments, second you need to remember internal or external purchase orders. For the spare parts, external purchase orders, do we require external purchase orders? So what I did click here is 2 means external purchase orders allowed, okay, that means I wanted spare parts but I can't buy internally means within my plants I can't buy them, I need to source them from outside, spare parts, so I'm clicking it as 2, okay, right. So if I don't want to, if I don't want to allow anybody to buy any spare parts from outside, so what I'll do here, I'll click on 0. If I click on 0 means no external purchase order, means you can't raise a purchase order out of your entity, out of your client. You can't raise a purchase order for a supplier which is out of your client. You can raise only within your company, so that is only, so it should be always true, remember. And then internal purchase orders allowed internally. If internally you wanted to buy, why you're going external means you don't want to buy internally, right? So no internal purchase orders allowed. If you want allow these to internal purchases also, then you can click on 2. You have another condition called 1. Internal purchase orders allowed, but warning will be issued. Warning means it will give a warning, but if you are raising an internal purchase order like an STO, it will warn you that for this material, you shouldn't choose this, okay, like this warning you'll get. So this is the one, okay, it will always be 0, okay, we are not going to modify it. Then anything else, see here, price control I am showing here. So price control, what was selected here, we do have standard price and moving price. So as I told you, we always be choosing a standard price for raw material, for raw material, and as well as whatever the finished goods are there, like spare parts, it may be, or semi-finished goods, you can use moving average price, because the way whatever the spare parts you are buying outside, it will fluctuate, frequently it will fluctuate, so I'll be using moving average price, okay. Account category reference is also the important one. If you click on this, you will find multiple account category references which are already created for the materials. For raw materials, we have chosen 001, remember, if you remember, okay. For supplies, 0002. For spare parts, you have 0003. For packaging, trading goods, services, non-valuated. For finished products, you have to remember majorly 2. One is 0001, which is for raw materials, and the finished goods, which is 0009. If you want to remember more, means simply 0006 for services, and as well as for our spare parts, which is 0003. You can remember this, okay? When you keep on practicing, you can easily remember this. If you don't remember also, it's no offense, okay. So right, so 003, I'm using account category reference for this material, okay, right. So then anything you have here, so no, nothing is important here, so we have created this. So एक डाउट है, आप क्वालिटी क्यों नहीं चेक कर रहे मटेरियल स्पेयर पार्ट्स के लिए? आपको क्वालिटी पहले से चूज करते हैं ना, कौन सी? क्वालिटी मैनेजमेंट अपना पार्ट नहीं है, अपन मटेरियल मास्टर में है,
अगर मैं यूजर डिपार्टमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट चेक कर लिया, मतलब समझो कि क्लाइंट बोला कि भाई हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सेक्शन भी होना, तो क्वालिटी मैनेजमेंट का सेक्शन चूज कर लिया, तो क्वालिटी का फिर अलग मॉड्यूल है, वो क्वालिटी का फिर अलग प्रोसेस है। कभी भी एक मटेरियल बनने के बाद एक QP01 बल्कि ट्रांजैक्शन रहता है, इसमें इंस्पेक्शन प्लान बनता। मतलब क्या है, गुड्स जब भी रिसीव होते हैं ना, साथ ही तुम गुड्स को जो है पोस्ट नहीं करते रहे, गुड GR पोस्ट नहीं करते। GR से पहले क्या होता है, इंस्पेक्शन प्लान क्रिएट होता है। जब इंस्पेक्शन की टीम आती है, उन्हें चेक करते, चेक करके फिर उन्हें जब बोलते कि ये ठीक है, क्वालिटी ठीक है, जब तुम GR कर सकते, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिस्कशन है। तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्टिवेट भी नहीं करते, हमको जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 टिका दिखा रहा है आपको, इट विल शोइंग यू क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट। व्हाट इज दिस मींस, आपका मटेरियल जो है, जब भी आपका मटेरियल स्टोर में बढ़ते रहता है या कम होते रहता है, तो खाली क्वांटिटी अपडेट होना, आपका वैल्यू भी अपडेट होना पूछ रहा। अपने को दो भी होना ना भाई, क्वांटिटी स्टॉक्स को चेक करते रहना हमको, वैल्यू भी जो इन्वेंटरी स्टॉक का वैल्यूएशन भी करते रहना आपको, कि मेरे स्टॉक में, मेरे इन्वेंटरी में कितना स्टॉक्स है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। सो यू नीड टू टेक ऑलवेज क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग, सो दिस यू नीड टू फॉरगेट ऑल द टाइम। सो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपी 228। देखिए मैं आपको क्या बोला, नया कहीं को बनाना भाई आप कॉपी कर सकते हैं ना, बल्कि आप लोग सवाल करें। सो अगर मैं नया बनाया तो इतने सारे एंट्रीज मेरे को बैकग्राउंड में कॉपी करना पड़ता जाके, तो ये सब कॉपी नहीं करना है आपको। बोले तो डिफॉल्ट अगर कॉपी कर लिए, तो उन्हें क्या कर रहा है भाई, पूरे बैकग्राउंड के जितने भी एंट्रीज है जो आपको काम जो सेव करने वाले है, पूरे एंट्रीज इन्हें एंटर कर ले रहा है। देखो पूरे एंट्रीज को इन्हें कॉपी कर ले रहा है, तो यू नो नीड टू डू एनीथिंग। ओके, सो ओके, टारगेट की मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम सोर्स की। अरे TROH के गुदाले यहाँ पे अपन स्पेयर पार्ट्स का था ना हमारा, हो गया ना। TSPR स्पेयर पार्ट्स हो गया, क्रिएट हो गया। एक सेकंड में TSPR लिए थे ना, तो दूसरा लिस्ट नहीं में नहीं, TSPR क्लिक करेंगे पहले इसको, विल चेक ऑन दिस। तो हम जो मटेरियल क्रिएट करे थे वो यहाँ पे सेव हो रहा अभी। लेट मी सेव इट एंड आई विल शो यू। हम एंटर मारे थे ना 2-3, तो उन्हें पुराने मटेरियल को भी ले लिया उन्हें। आई एम गोइंग टू OMS2 नाउ। सो व्हाट एवर द मटेरियल वी हैव क्रिएटेड वी कैन चेक इट। यहाँ पोजीशन में क्लिक करो आप, TSPR आप जो बनाए थे, यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन सी इट। यहाँ पे TSPR बन गया। यहाँ पे मटेरियल का नाम क्या लिखना चाह रहे हैं आप, स्पेयर पार्ट्स। आप टाटा का नाम देना चाह रहे हैं तो यू कैन गिव योर टाटा नेम, TA टाटा स्पेयर पार्ट्स। ओके, सो टाटा स्पेयर पार्ट्स बन गया। उसके बाद हमारा टाटा ROH था, TROH, वो कहाँ है वो भी देख लो। यू कैन चेक इट, यू कैन क्लिक इट हियर, TROH, यू विल फाइंड इट। सो टाटा रॉ मटेरियल। So we do have Tata raw material as well as Tata spare parts. So you can cross check the details of TSPR again. यहाँ पे क्लिक करो आप। मैं जैसा बोला आपको, ये वाला डिटेल्स देखने के लिए, डिटेल्स देखना है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पर दिख रहे हैं। ओके, ये सिस्टम कभी कभी सवाल बताते रहता है। So we have already created 2 materials. One is TSPR, second is TROH. ये प्रैक्टिस सर्वर में थोड़ा परेशानी करते रहता कभी कभी। OMS2, do we have TSPR? Okay, TSPR भी आ गया। Then I wanted to check TROH also. Okay, so दो मटेरियल हम लोग क्रिएट कर लिए यहाँ पे, समझ में आ गया ना। एक मटेरियल टाइप बना दिया भाई मैं यहाँ पे, और एक भी बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन क्रिएट अनदर वन आल्सो। देखिए और क्या बनाएंगे भाई, फिनिश्ड मटेरियल बना देंगे। देखो फिनिश्ड मटेरियल, आई एम चूजिंग ए फिनिश्ड मटेरियल नाउ, FERT। आई एम डूइंग ए copy, so I can change this as TFRT कुछ भी बोलो, TFRT, चलो TFRT, टाटा फिनिश्ड। ओके, सो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ये। देन अगेन एंटर, सेव, एंटर अगेन, नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज। ओके ओके, तो कॉपी हो गया। देखिए कितने हो गए यहाँ पे, TFRT हो गया, TRS हो गया, TSPR, 3 मेटा टाइप बना दिए भाई अपन। ओके, अब देखो मैं इस कई को 3 बना दिया आप लोगों को समझाने बोले तो। देखो मैं अब बैक जा रहा हूँ, आई कैन सेव दिस डेटा। ओके, वो पूरा वहां पे TR में सेव हो रहा, राइट। सो नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएशन ऑफ ए मटेरियल टाइप। क्या था हमारा नेक्स्ट स्टेप भाई मटेरियल टाइप बनाने के बाद, मटेरियल ग्रुप, नंबर रेंजेस बना के उसको असाइन करना ना। उसके बाद अपन मटेरियल ग्रुप, राइट। नंबर रेंजेस के लिए टी कोड क्या था भाई, व्हाट वाज द टी कोड फॉर नंबर रेंजेस, MMNR इज योर मटेरियल मास्टर नंबर रेंज। कभी भी याद रखिए, अगर आपके PPT में भी नहीं है तो उसको मैं अजर भाई MMNR मेरे ख्याल से यहाँ पे टी कोड में डाल दिया मैं ऑलरेडी। देखो यहाँ पे डाल दिया मैं,
पाथ हमारा जो है SPRO IMG लॉजिस्टिक जनरल सेम पाथ है, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स, डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप और MMNR। पाथ भी अगर दिखाना बोले तो मैं आई कैन शो यू द पाथ आल्सो। So let me go back to this and I'll show you the path carefully. You can see here SPRO IMG में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। So all the material master configuration काम करते हैं अपन लॉजिस्टिक्स जनरल में करते हैं, लॉजिस्टिक्स का पार्ट है हमारा। MMB वन ऑफ द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स में जा रहे हैं हम लोग। सो मटेरियल मास्टर क्लिक करूँ मैं यहाँ पे, then I'll be clicking on basic settings. Then here you see material types you are having. You don't need to look after all these things, but only material types. So I'm clicking on material types and you can see here one is define attributes of material type. यहाँ पे क्लिक करो तो क्या होता है, आप material type बनाते। उसके बाद देखो लास्ट में क्या है, define number ranges for each material type। आप जो material type बनाए उसको each को number range बनाना है तो इसमें जाओ बोल के बनाना। ओके, I'll click on this। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, what is the first process? Now you need to define a group। ऑलरेडी अपन एक ग्रुप डिफाइन करे, वो इस ग्रुप 3 मटेरियल टाइप को भी असाइन कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए, I can assign that number range to all of these material groups। So यहाँ पे एक सवाल आ गया चैट बॉक्स में कि for all department types we have to keep same user department। So it depends। See what will happen is, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में जो है रॉ मटेरियल को चूज नहीं करा था। रॉ मटेरियल जो है कभी भी सेल नहीं करते ना आप रॉ मटेरियल मैक्सिमम कंपनी के लिए परचेस करते। परचेस करने के बाद आप जो चीज बना के बेच रही दैट इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मैं ZFER जब सेलेक्ट करा उसमें जो है सेल्स ऑलरेडी पिक करके रहता, अगर पिक नहीं करे तो बाद में पिक कर लेते सेल्स डिपार्टमेंट वाले। सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ट्रेड, अब देखो सपोज ट्रेडिंग गुड्स है, ट्रेडिंग गुड्स को और फिनिशिंग गुड्स को दोनों को जो है सेल्स डिपार्टमेंट एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये दोनों भी चीजें सेल्स करने के लिए है। रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स रहते या सेमी फिनिश्ड रहते, दिस प्रोडक्ट्स आर देयर टू प्रोक्योर बाई करने के लिए, तो परचेस डिपार्टमेंट एक्टिवेट कर लेता हूं मैं। सो दिस विल हैपन। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, उन लोगों की रिक्वायरमेंट। आप क्या MM की तरफ से आप ये चार्ज एक्टिवेट करते, अगर किसी डिपार्टमेंट वालों को समझ में आया कि उन्हें एक्स्ट्रा चाह रहा तो उन्हें एक्टिवेट कर लेता, आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यू नो नीड टू डू इट। सो नाउ अब हम लोग मटेरियल टाइप बना दिए। सो यू सी यहाँ पे मैं ग्रुप्स क्लिक करे तो डिस्प्ले ग्रुप्स में देखे तो लास्ट में हम लोग एक ग्रुप बनाए थे, याद है आप लोगों को, याद है तो यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे देखो आप TROH बोल के ग्रुप बनाए थे हम लोग, ठीक है। ये TROH टाटा मटेरियल जो बनाए थे हम, टाटा रॉ मटेरियल, ये ग्रुप को असाइन करे। कौन सा ग्रुप को असाइन करे, देखो यहाँ पे हम टाटा रॉ मटेरियल, ठीक है। इट इज असाइन्ड हियर ऑलरेडी। इज इट क्लिकिंग और व्हाट, टाटा मटेरियल। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई विल क्रिएट अनदर ग्रुप हियर नाउ। सो यहाँ पे टॉप में जाना है ग्रुप एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग इट। अब यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ मैं, क्या ग्रुप बना सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल को एक नंबर रेंज दिए थे अपन, कौन सा नंबर रेंज दिया किसी को याद है? 2000 सीरीज दिए थे ना हम लोग, या 1000 सीरीज? 2000 सीरीज 902 to 299 1992 2992 चेक कर लेंगे बैक 2000 राइट, ये वाला ट्रिपल लाइन दिए थे। देखो 2 इतने जीरो से यहाँ तक दिए हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये ऑलरेडी यूज कर लिया मैं, अब 3 सीरीज यूज कर सकता हूँ मैं, तो मैं ये नंबर कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आई कैन गिव 3। चलो आई एम गोइंग बैक नाउ। सो यहाँ पे जो ग्रुप में एडिट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ग्रुप में जा रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट करूँ, केयरफुली देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ग्रुप में मैं क्या लिख रहा हूँ बोले तो यहाँ पे देखिए, जब से क्या कर रहे थे अपन, वहाँ पे रॉ मटेरियल बनाए थे यहाँ पे। सो टाटा मटेरियल बोल के डाल दो यहाँ पे, टाटा मटेरियल्स, क्योंकि इसमें स्पेयर भी लेता हूँ मैं, फिनिश भी लेता हूँ, दोनों को, स्पेयर को और फिनिश को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक ही नंबर रेंज रखना चाह रहा हूँ। आर यू कैन कीप डिफरेंट नंबर रेंजेस फॉर बोथ ऑफ देम। तो आपको 2 सिनेरियो समझा रहा हूँ मैं। एक सिनेरियो क्या समझाया था आप लोगों को, 1 metal type I have created, 1 only number range I have assigned to it. Now what I have did, another 2 metal types I have created, वो दोनों मेटल टाइप को मैं एक ही ग्रुप को असाइन करता हूँ। देखिए आप, टाटा मटेरियल यहाँ पे बनाया, फ्रॉम नंबर के पास Ctrl+V, 2 के जगह निकाल के हम 3 लगा लेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब मैं एंटर मार दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट, आई एम गोना सेव इट। ओके, देखो यहाँ पे जो है नंबर रेंज एक सेव हो गया। ये नंबर रेंज बनाया मैं, मगर किसी को असाइन नहीं करा मैं, कौन सा मटेरियल टाइप असाइन करना है। अभी कभी भी जो है, जैसे एंटरप्राइज सेक्टर में क्या कर रहे हैं आप, इंडिविजुअली प्लांट कंपनी को क्या बोलते हैं, क्रिएट कर लिए, देन यू हैव असाइन्ड देम। सो यहाँ पे भी जो है हम लोग मटेरियल टाइप बनाने के बाद एक नंबर रेंज को असाइन करना पड़ता है। नंबर रेंज असाइन नहीं करो तो क्या होता भाई, मटेरियल क्रिएट होता, वो डिफॉल्ट होने से एसएपी वाला नंबर रेंज जो देखे है ना आपने से पहले,
वो नंबर रेंजेस ले लेता डिफॉल्टली. ओके, सो नाउ आई विल गो बैक. Save changes first. Yes, we do want to do the changes. Now what I'm gonna do is, अब देखिए यहाँ पे असल असाइनमेंट यहाँ पे थोड़ा सिस्टम सेट था अपने को. देन हमारा कहाँ है भाई, देखो लेट्स सी वेयर वाज आवर ग्रुप सिलेक्टेड. हमारा एलिमेंट किधर है, लेट मी चेक माय एलिमेंट. व्हाट वाज द एलिमेंट व्हिच वी हैव क्रिएटेड, वी हैव टू चेक इट हियर. यहाँ पे चेक करना पड़ता अपने को. अपन जो बनाए थे, क्या बनाए थे हम लोग, TFRT. देखो यहाँ पे दिखा, देखो TFRT TSPR ये दोनों है अपने पास बने हुए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं सेलेक्ट ग्रुप बोल के बोल रहा. देन आई विल कम डाउन. व्हाट इज द ग्रुप व्हिच यू हैव क्रिएटेड, और नीचे दिखता आपको बनाए थे अपन. देखो यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 टेस्ट ग्रुप 2 फ्लॉप ग्रुप 2 थ्योरी 1. नो, all material types. It should show here test 1 2 3 1 2 3 group. No, चलो एक बार यहाँ चेक कर लेंगे. फिर ग्रुप मेंटेन सेलेक्ट ग्रुप. क्या नाम लगाए थे अपन ग्रुप का, टाटा मटेरियल. टाटा रॉ मटेरियल. टाटा रॉ टाटा मटेरियल. ये शायद अपन. टाटा मटेरियल. नो, लेट मी चेक अगेन. इट शुड कम. वो टाटा रॉ मटेरियल तो डिस्क्रिप्शन में था. यहाँ पे देखो एक मिनट, लेट मी सी. टाटा रॉ मटेरियल तो पुराना वाला था. वेट, ये तो दे दिए अपन, बट अभी जो क्रिएट करे दैट इज नॉट शोइंग. लेट मी क्रिएट अगेन वन. लेट मी गो बैक ग्रुप्स. लेट मी क्रिएट वन. सो यहाँ पे जो है टाटा मैट नंबर रेंजेस कंट्रोल V. अगर वो 3 ऑलरेडी ले लिया तो यहाँ पे अपन 4 डालेंगे. इट माइट बी देयर बट उसको नहीं दिख रहा आपने को. लेट मी सी, उसके बाद में चेक करेंगे. 99393. ओके, एंटर, सेव. The changes was saved. Okay, I'll go back. Can we see that here now? कभी कभी जो कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू से प्रैक्टिस क्लाइंट से प्रॉब्लम ये है कि वो वैल्यूज दिखाते नहीं रहता, कभी कभी अलग बिहेव करता. देन व्हाट वी नीड टू डू इज इसको लॉग ऑफ करके लॉग इन करे तो फिर सेट हो जाते हो. कभी कभी ऐसे ही होता. सो देखो यहाँ पे जो ऑलरेडी ग्रुप्स भरे हुए है इसीलिए उन्हें शो नहीं करा शायद. लेट मी ट्राई टू डिलीट वन ऑफ देम. इसको डिलीट कर देंगे अपन. maintain select a group flop group. Okay, why it is not getting created. Spare parts number is Tata raw material. ये ग्रुप 2 टाटा मिट क्या बता रहा ना, ग्रुप 2 टाटा मिट. ग्रुप टू यहाँ पे आ गया क्या नंबर है. ठीक है, ग्रुप 2 में आ गया शायद. लेट मी इसको चेंज कर लेंगे अपन. क्या कर लेंगे, टाटा मैट बोल के लगा दे रहा हूँ इसको मैं. लेट मी उसके नीचे बता रहा ना ऑप्शन ग्रुप टाटा मैट. टाटा कहाँ पे दिखा रहा आपको, यहाँ बैक जाइए तो. नहीं टाटा रॉ मटेरियल से वो पहले बनाया था अपन ग्रुप है. फिर से आप और एक बनाए थे टाटा मैट. नहीं, ये नीचे बता टाटा मैट. ओके राइट आ गया. चलो ठीक है, टाटा मैट ऑलरेडी आ गया. लेट मी चेंज दिस. ओके, ये अब जो बनाए थे हम आ गया. लास्ट वाला नहीं आया था अपने को. सो लेट मी एलिमेंट और ग्रुप सेलेक्ट एलिमेंट फर्स्ट. एलिमेंट क्या था हमारा, ठीक. उसके बाद सिलेक्ट ग्रुप. ये हर एक सिस्टम में एक तरह बिहेव करता. आप लोगों के सिस्टम में, आप लोगों के वर्जन में देखो यहाँ पे बॉक्स रहता. किसी को जो यहाँ पे डायरेक्टली बॉक्स रहता
वो एलिमेंट के बॉक्स को इसके बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे बॉक्स नहीं है तो इसको जो है कैसे असाइन करना है, देखो यहाँ पे टाटा मैट है ना, मैं इसको क्लिक कर ले रहा हूँ। इट इजंट शोइंग एलिमेंट, हमारा एलिमेंट कहाँ है भाई? ओके, टाटा मैट एच है ना हमारा, ओके। No, no. It should pick CSPR. Okay. Something is happening here. One sec. Let me select this again. आपको कुछ छोड़ दो, हमारा टेस्ट ग्रुप टाटा ग्रुप है, इसको मेंटेन select a group. Okay, so टाटा मैट एलिमेंट एंड ग्रुप असाइन हो गया? नहीं हो गया, प्लीज सेलेक्ट एलिमेंट अगेन। राइट, सो यहाँ पे देखिए क्या है, अपने को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए अपना ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, टाटा मैट, ये वाला है ना, नीचे का है ग्रुप नीचे का है। नीचे। ओके देन ओके, आई एम सेलेक्टिंग इट नाउ। सो अब देखिए वहाँ पे असाइन हो गया ना, देखिए असाइन हो गया। यहाँ पे टाटा मैट को पहले वाले को रॉ मटेरियल हो गया, यहाँ पे टाटा फिनिश्ड वाले को ये सेलेक्ट हो गया। आई एम सेविंग इट, इट्स ऑलरेडी सेव्ड। सो अब क्या करना है इसके अंदर, देखो एक TROH में असाइन कर रहा था यहाँ पे, और इसको और एक असाइन करके देखेंगे। लेट्स सी, रॉ मटेरियल में स्पेयर पार्ट असाइन करते बोल रहे थे ना, रॉ मटेरियल भी कर सकते, फिनिश भी कर सकते। आई विल बी डूइंग फॉर फिनिशिंग नाउ, उसको इजी रहने दो, या इसको असाइन करोगे तो इसको असाइन कर लेंगे अपन। लेट्स डू दैट। ओके, कहाँ है भाई हमारा मटेरियल, लेट मी चेक दैट, TSPR। ओके, सो क्या आसन करेंगे TSPR को, बोलो ये वाला आसन करो, पहला वाला आसन करो, एनी ग्रुप रेफरेंस। सो आई विल फिनिश कर दो, फिनिश डू ही करो। ओके चलो, फिनिश्ड में सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इफ यू कैन कम डाउन हियर, अब देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल को ये वाला नंबर रेंज सेलेक्ट कर लिया होना, एक रॉ मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद जो इसको कौन सा नंबर रेंज याद रखिए आप लोगों, 2000 सीरीज है, 2 लाख सीरीज, 290 से 299 तक। तो जो भी मटेरियल बनाएंगे 2 सीरीज से आता है, समझो रॉ मटेरियल है। उसके बाद फिनिश्ड मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स के लिए क्या रखे अपन, 4 सीरीज का रखे थे अपन, ठीक है। लेट्स सी अपन क्या करेंगे, अभी मैं आपको ये भी मटेरियल बना के दिखाता हूँ, ये भी मटेरियल बना के दिखाता हूँ मैं, राइट। नाउ आई विल सेव इट। अब असाइनमेंट हो गया हमारा। आप लोगों के सिस्टम में ये अलग रहता है, यहाँ पे कैसा रहता है, आप लोगों के सिस्टम में देखो, अगर आप लोगों का वर्जन अलग है तो यहाँ पे बॉक्स रहता है, तो बॉक्स के सामने एक बॉक्स टिक कर लेके ऊपर आना, रॉ मटेरियल के पास बॉक्स होता है, क्लिक करके ये क्लिक करो। अगर आपके पास बॉक्स नहीं तो मैं जैसा करा वैसा करना है, सीधा नीचे ग्रुप को सिलेक्ट करना है, ऊपर आके आपका एलिमेंट जो है, मतलब जो मटेरियल क्लिक करने के बाद ये एलिमेंट एंड ग्रुप, देखो असाइन एलिमेंट ग्रुप, एलिमेंट को ग्रुप को असाइन करने के क्लिक करते हैं, आपको वहाँ पे वो बॉक्स आता है, वो बॉक्स में आप असाइन कर दे सकते हैं, राइट। तो नाउ विल कम बैक। अब हम क्या करेंगे, नंबर रेंज हो गया अभी हमारा काम। अभी अपन डायरेक्टली मटेरियल भी बना सकते हैं, मगर मटेरियल बनाने से पहले मैं जैसा बोला आपको, I'll tell you one other topic that is called as material groups. So number range is clear है ना आपने को। So we can create a material type now by using OMS2 and the path is same for the both of the number ranges को भी। Number ranges you have a T code called MMNR. Now another thing which is a important one when it comes to master data, that is a material group. So why we need a material group? कहाँ दिखता है ये material group हमारे को, जब material बनाते हैं आपको material के फर्स्ट पेज में material group बोल के आता है, that there I can show you, but before that
we should understand what actually a material group is. Material group is a wider range of material types. एक material group के अंदर कितने ही material types रह सकते हैं. Like देखो, मेरे पास एक रॉ मटेरियल्स है, स्पेयर पार्ट्स, सॉरी रॉ मटेरियल्स मतलब आयरन के रॉ मटेरियल्स मेरे पास है, एंड आयरन के स्पेयर पार्ट्स भी मेरे पास है. आयरन के रॉ मटेरियल एक मेटल टाइप है, आयरन के स्पेयर पार्ट्स एक मेटल टाइप है. वो दोनों को मिला के आयरन मटेरियल्स बोल के ग्रुप बना सकता हूं मैं. आई कैन कीप इट एट वन प्लेस. I can call them as a one. I'm not keeping it one place. I'll call them as a metal group. Iron. So now मेरे कंपनी के अंदर लैपटॉप्स भी है, कंप्यूटर्स भी है, और क्या बोलते हैं उसके एक्सेसरीज पूरे है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कंप्यूटर एंड इट्स एक्सेसरीज, बल्कि मैं ग्रुप बना रहा हूँ मटेरियल का. दैट आई विल शो यू. ग्रुप्स है यहाँ पे. So वो ग्रुप बनाऊंगा एंड I'll club all of them into one group. So like this. So materials with some common attributes are taken together and they are assigned to material group. So some common attributes मतलब आप बोल सकते हैं प्लास्टिक आइटम पूरा एक बोल सकते हैं, स्टील आइटम को पूरा एक बोल सकते हैं. ऐसा जैसे अलग अलग कर लेते हैं अपन. आप घर शिफ्टिंग कर रहे हो तो क्या करते हैं भाई, बॉक्सेस बनाते हैं. बॉक्सेस में क्या करते हैं, पहले कपड़े पूरे एक बॉक्स में रखते हैं, कांच के आइटम पूरे एक बॉक्स में रखते हैं, स्टील के आइटम एक बॉक्स में रखते हैं. सो यू आर ग्रुपिंग देम, द मटेरियल्स व्हिच आर हैविंग सम कॉमन एट्रिब्यूट्स, यू आर ग्रुपिंग देम इनटू सम ग्रुप्स. ओके, ग्रुप्स बना रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्या बोलते हैं उसको अलग अलग खरीदना चाह रहे हैं. खरीदने की बात नहीं है यहाँ पे, ग्रुप कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए, या जो है उसको जो है परचेस करने के लिए ग्रुप बना के रख दिए. ओके, तो मैं क्या आई कैन क्रिएट अ परचेस ग्रुप. आई कैन सी दैट आप जो है ये मेटल ग्रुप जो भी है ना, आयरन रिलेटेड जो भी चीजें रहते हैं आप इस परचेस करो. एक परचेस ग्रुप मैं बनाता हूँ कंप्यूटर्स के लिए. वो लोग खाली कंप्यूटर के एक्सेसरीज जो भी है, कंप्यूटर के प्रिंटर रहने दो या लैपटॉप रहने दो या उसका कीबोर्ड रहने दो या माउस रहने दो, उसका हर चीज जो है उन्हें परचेस करता. सो लाइक दिस फॉर माय कन्वीनियंस आई एम डिवाइडिंग इनटू देम सम मटेरियल ग्रुप्स. ओके, सो देन पाथ टू क्रिएट ए मटेरियल ग्रुप. याद रखिए अगेन IMG लॉजिस्टिक्स जनरल मटेरियल मास्टर सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स डिफरेंट मटेरियल ग्रुप्स. OMSF OMS2 मटेरियल टाइप के लिए याद रखिए, OMSF मटेरियल ग्रुप के लिए इजीली याद रहता आपने. OMS2 मटेरियल टाइप, OMSF मटेरियल ग्रुप. ये टी कोड याद रहता बस. पाथ ज्यादा नहीं पूछते लोग, टी कोड पूछते. अगर पाथ भी पूछे तो यू कैन शो यू द पाथ. देखो मैं जब जा रहा हूँ पाथ दिखाने के लिए, देन आई विल गो टू, देखो आई विल कम बैक अगेन बिकॉज जब भी दिखाना पूरा पाथ स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आपको. SPRO IMG से मेटल मास्टर के जो भी चीजें हैं वेयर आई कैन डू इन लॉजिस्टिक्स जनरल. अभी देखो मैं आई विल गो टू लॉजिस्टिक्स जनरल अगेन. इसके बाद देखिए मटेरियल मास्टर. जब से क्या कर रहे थे हम लोग, बेसिक सेटिंग्स में गए थे यहाँ पे, उसके बाद मटेरियल टाइप्स में आए थे. यहाँ पे क्या क्या चीजें थे, एट्रीब्यूट मटेरियल टाइप्स बना दिया, नंबर रेंज बना दिया, मगर यहाँ पे वो नहीं है. देखो मटेरियल ग्रुप्स का. देन आई विल क्लोज दिस. उसके बाद देखिए यहाँ पे इफ आई क्लोज दिस बेसिक सेटिंग्स, और एक चीज है यहाँ पे सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स. आई विल क्लिक इट. यहाँ पे ये सब चीज आपने को जरूरत नहीं है. ओनली द फर्स्ट वन, डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स. इफ यू क्लिक ऑन दिस डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स, दिस इज द ओनली थिंग विच विल कस्टमाइज. देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं. देखो ऑटोमेटिक डोर्स, मेटल प्रोसेसिंग, स्टील्स, स्टील शीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फास्टनर्स, केबल्स, मिसलेनियस, इंजन्स, पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, पंप्स मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स. अक्सर जितने ग्रुप्स रहते हैं पूरा ऑलरेडी ने बना दिया भाई, SAP वाला ऑलरेडी बना दिया. ओके, सो आप अगर एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, सो यू कैन क्रिएट ए न्यू ग्रुप हियर. कुछ ग्रुप बोलो भाई, कुछ ग्रुप बोलो अपन बना देंगे यहाँ पे. TMG, कुछ भी मटेरियल्स का एक ग्रुप, एक कंपनी में एक चीज है भाई. टाटा मटेरियल ग्रुप, TMG. नहीं भाई, गो टाटा मटेरियल्स में रॉ मटेरियल रहता, स्पेयर पार्ट्स रहते, सब रहते, वो ऑलरेडी टाइप्स में बना दिया अपन. मटेरियल ग्रुप बोलते आप समझ गए ना. मैं देखो मेरे कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स पूरों को एक ग्रुप बना दिया, रख देंगे 00103 बोल रहा हूँ उसको. एंड आई विल कॉल ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एज वन पार्ट. उसमें मोबाइल भी आता है, लैपटॉप भी आता है, हर चीज भी आती है. इलेक्ट्रॉनिक की जो भी चीजें हैं वो चीजें आती है इसके अंदर, हर चीज यहाँ पे बना दिया भाई. तो मेरी टाटा मोटर्स के लिए मैं क्या खरीदता हूँ बोलो अक्सर बाहर से, व्हाट अवेलेबल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स की मेरी प्लांट है भाई. प्लांट है, मैं जब कार असेंबल करता हूँ. तो कार असेंबल के लिए मैं क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, पेंट की जरूरत पड़ती है ना, मेटल, पेंट आइटम. पेंट की तो जरूरत मेरे ख्याल से पड़ती है, पेंट यहाँ पे है कि नहीं कि चेक कर लेंगे. अगर पेंट नहीं है तो हम पेंट बना देंगे. शीट्स की जरूरत पड़ती है. डायरी है देखो, पेंट नहीं है यहाँ पे. सो आई विल क्रिएट ए पेंट. ओके, क्योंकि ऑयल शीट्स भी बना दिए यहाँ पे लोग ऑलरेडी. शीट्स भी आ गए यहाँ पे, आयरन शीट्स आ गया, एल्यूमिनियम भी आ गया, सब आ गया. मेरे ख्याल से इसके अंदर पेंट नहीं आके रहता. सो हम क्या व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए न्यू वन. मेरा पुराने एग्जिस्टिंग को कॉपी कर सकता हूँ, किसी भी सॉल्वेंट है देखो, ये भी लिक्विड है, इसको यूज कर सकता हूँ. नहीं तो न्यू एंट्रीज कर देंगे. चलो, तो मटेरियल ग्रुप बना रहा हूँ यहाँ पे. कुछ भी नाम दे सकते हैं, 11013, कुछ भी एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे. मटेरियल ग्रुप को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पेंट है ना हमारा, पेंट्स बोल के दे रहा हूँ यहाँ पे. मटेरियल ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑल पेंट. इसमें क्या आता है, ऑल पेंट्स बोले तो
इसमें प्राइमर आता है, जो पेंट्स जो है आप गाड़ी को मारते हैं एक एकदम फर्स्ट कोट नहीं मारते, इसके अंदर प्राइमर रहता है, उसके अंदर सब कोट्स रहते हैं, अलग अलग कोट्स रहते हैं, प्राइमर रहता है, सेकेंडरी और एक मारते, थर्ड मारते, तो फाइनल कोट अलग रहता है। तो अलग 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 जो है वेरिएंट्स होते हैं पेंट्स के अंदर। तो जो भी है मैं ऑल पेंट्स बोल के डालता हूँ जो भी रिक्वायर्ड है मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए। ओके, सो उसके बाद और डिस्क्रिप्शन को देना चाह रहे हैं तो जरूरत नहीं है पे, इसके अंदर इट इंक्लूड्स प्राइमर भी आता है उसके अंदर, और क्या बोलते हैं भाई, कोई है यहाँ रेड पे जो, ऑक्साइड, हाँ रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, चलो रेड ऑक्साइड की भी जरूरत है समझो कंपनी की। ओके, और कुछ है? ग्लॉसी, क्या बोले? ग्लॉसी, अच्छा ग्लॉसी, ग्लॉसी, ग्लॉसी भी है। ओके, तो ये जो भी है डिस्क्रिप्शन इनरमैन। में आप लिख ले सकते हैं, मैं लिख दिया इसके अंदर। आई विल सेव इट नाउ। यहाँ पे पूछ रहा काम पे सेव करो बनाना, अगेन मास्टर डेटा में सेव कर ले रहा हूँ मैंने, तो नया क्रिएट करना है भाई मेरे को, नया टीआर बोलता, नया टीआर बना लेता हूँ। ओके, आई विल सेव इट एज ए मास्टर डेटा पार्ट ऑफ दी। अब बना लिया मैं, देखो अब देखो मैं पोजीशन में जाके पेंट्स बोल के चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पेंट्स बोल के ग्रुप बने हुए ऑलरेडी, प्राइमर, रेड ऑक्साइड और ग्लॉसी जो भी चीजें हैं वो पेंट्स के मेटल ग्रुप में आ गए यहाँ पे। ओके, नाउ अजहर भाई, ये मटेरियल ग्रुप को अपन कोड भी दे सकते हैं, राइट? कोड भी सपोज दे सकते हैं, लाइक देखो यहाँ पे R11 R111। समझो कि भाई आप हमेशा एक किस्म का केमिकल खरीदते हैं बाहर से। ओके, वो केमिकल का नाम एक डिफॉल्ट नाम है मार्केट में मिलता है Z312 बोल के क्या भी एक रहता, तो उसको आप वो केमिकल के नाम से याद रखना चाह रहे हैं तो Z312 केमिकल आप खरीद रहे हैं बाहर, उसके नाम से मेटल ग्रुप बना के रख ले सकते हैं, आपको इजीली आइडेंटिफाई होता है। वैसा कुछ भी देखना चाह रहे हैं तो लोग कोड में रखना चाह रहे हैं, कोड में याद रखने, कोड में दे सकते हैं। अरे कोड याद नहीं रहता भाई हमारे लोगों को, खाली नाम दे दो बोले तो नाम दे सकते हैं, मैं पेंट्स बोल के दिया यहाँ पे। ओके, How many digits Azhar भाई? यहाँ पे इसके लिमिट आई गेस लेट मी चेक, 8। 8 है कुछ रहता भाई इसका, 8 या 6 कुछ रहता। मिडिल ग्रुप का 9 है, मिडिल ग्रुप कितना है वहाँ पे? 9 है। हाँ, मैं 9 हो सकता, आई डेंट चेक इट बिकॉज ये उतना नेसेसरी नहीं है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 तक है। ओके, सो राइट, then I'll go back, go back then I'll save the changes. ओके, मेटल ग्रुप बना दिया भाई मैं। अभी जो है अब असल मेन काम आप कर रहे हैं, अपन आप मेटल क्रिएट कर रहे हैं एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। अपना मेन प्रोजेक्ट में काम क्या रहता है, मेटल बना दो बोलते, कितने मटेरियल है उतने मटेरियल बनाना बोलते कंपनी में। एक कंपनी में टाटा मोटर्स की कंपनी है भाई, देखो सो मैं कुछ भी मटेरियल खरीद सकता हूँ बाहर से। एक अपन पेंट्स में खरीद सकता हूँ, पेंट्स में बोल के बोला आप लोगों को, कुछ स्पेयर पार्ट्स की मेरे को जरूरत रह सकती है, उसमें टायर्स भी है समझे, फिनिश्ड गुड्स समझेंगे। फिनिश्ड गुड्स जो है मेरे टायर्स है, टायर्स अगर होना है मैं टायर्स बाहर से खरीदता हूँ। और मेरे को इंजन होना है, इंजन भी एक फिनिश्ड पार्ट है, इंजन को असेंबल अलग अलग पार्ट्स लेके करते ना, अलग अलग पार्ट बोले तो स्पेयर पार्ट्स हो जाता है। इंजन का पूरा पार्ट लेके मैं बाहर से खरीद रहा हूँ तो उसको मैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलता हूँ। अगर इंजन में कुछ कार्बोरेटर अलग से खरीदना है मेरे को, कार्बोरेटर को मैं क्या बोलता हूँ, एक असेंबली, एक स्पेयर पार्ट बोल के बोलता हूँ। अपन क्या करेंगे मालूम है, सब बना के देखेंगे अपन। इट्स नॉट लाइक आई ओनली क्रिएट एक ही मटेरियल, अब वो भी बनाते हैं अपन। अब देखो मटेरियल बनाने के लिए कितने पार्ट्स है भाई, एक चीज क्या है, MM01 इज योर ट्रांजैक्शन। मैं जो है आपको पीपीटी के अंदर पूरी चीजें देखे हूँ यहाँ पे, लेट मी डिलीट दिस, वी डोंट नीड इट। यहाँ पे देखिए, टू क्रिएट ए मटेरियल ऑलवेज MM01, टू चेंज इट इज MM02 एंड टू डिस्प्ले इट इज MM03। 952 हो रहे हैं ऑलरेडी, मैं 10 तक क्लास लेता हूँ, 10-15 उसके बाद जो है सवाल भी देखेंगे अपन। इट्स फाइन फॉर यू एवरीबॉडी, या जल्दी क्लोज कर लेंगे 10 भाई, अभी क्लोज कर दो मैं। कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ भाई, मटेरियल क्रिएट करना पूरा देख लेंगे आज, जो भी डाउट से क्लियर कर लेंगे, सो दैट वी कैन स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुमारो, राइट? सो द ट्रांजैक्शंस इज MM01 02 03। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आई क्विकली गो टू, कुछ सवाल आते तो बाद में करिए आप लोग, और क्विकली अपन मटेरियल्स बना देंगे। देखो यहाँ पे MM01 आ दिया, ये स्क्रीन आ गया मेरे को भाई। मैं MM01 नहीं, मेरे को बात याद रखना बोले तो यहाँ पे देखो इजी एक्सेस है ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूरे जाके SPRO में करते हैं अपन, क्रिएशन नहीं करते वहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन करते। क्रिएशन मटेरियल का पीओ का काम बनाना बोले तो यहाँ इजी एक्सेस में कर ले सकते हैं। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स क्लिक करो, यहाँ पे पूरी चीजें दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ओके, सो इसके अंदर आई गेस मटेरियल मैनेजमेंट में, इफ यू गो टू मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो मटेरियल मास्टर दिख रहा है आपको, क्लिक करो, यहाँ पे मटेरियल दिख रहा है आपको, लेट मी क्लिक इट। देखो यहाँ पे क्रिएट बोल के है, इसके अंदर क्रिएट में क्लिक करो, देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, फिनिशिंग, फिनिश्ड वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे है, ये स्पेशल मटेरियल्स के लिए। ओके, क्लोज इट, क्रिएट जनरल मटेरियल। जनरल में क्या है, MM01। ओके, MM11 क्या है भाई, शेड्यूल, मतलब एक मटेरियल क्रिएट करना चाह रहे हैं आप श्योर नहीं है, कल परसों बनाना चाह रहे हैं तो ये यूज करते हैं, मगर अक्सर कोई भी यूज नहीं करते ट्रांजैक्शन को, 99% हम लोग MM01 को यूज करते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन MM01। अब देखो यहाँ पे आ गया सेम, यू कैन गो टू द पाथ और यू कैन डायरेक्टली एंटर द टी कोड, सो रिमेंबर द टी कोड ऑलवेज। अब देखो यहाँ पे ये मटेरियल बनाना है भाई मेरे को, मटेरियल क्या कर सकते हैं हमेशा, मोस्टली ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज, यू नो, रियल टाइम में पूरे इंडस्ट्रीज यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं देते, क्योंकि नंबर रेंजेस दे दिया ना आप, वो नंबर रेंजेस में से नंबर चूज कर लेता हूँ ना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इंडस्ट्री सेक्टर देना पड़ता है। इंडस्ट्री क्या क्या सेक्टर है, देखो आपको एरोस्पेस है, बेवरेज है, केमिकल है, कमोडिटी है, फूड है, मैकेनिकल। आपने कौन सा कंपनी भाई,
मैकेनिकल फील्ड की थी ना हमारी, ओके हमारी ऑटोमोबाइल की मैकेनिकल फील्ड की है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करा हमने। मटेरियल टाइप देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे मटेरियल, बोलो आप लोगों को। मैं ये टायर्स बनाना चाह रहा हूँ, टायर खरीदना चाह रहा हूँ मैं, पहले टायर का मटेरियल बनाना है मेरे को। सो व्हाट आई विल यूज टायर के लिए, क्या करेंगे हम, फिनिश्ड मटेरियल को यूज करेंगे। क्या बनाए थे फिनिश्ड मटेरियल अपन, टी, भूल गए भी आप लोग, हाँ? TFRT TFI ये FART उसका था, ये TFRT हम बनाए सो है, तो मैं ये यूज करता हूँ, नंबर रेंजेस पिक करता, तो TFRT क्लिक करो मैं, राइट। सो अब देखिए एंटर मारना, कुछ भी नहीं करना, बस एंटर मार दो। अब पूछ रहा है यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट्स होना आपको आपके मटेरियल बनाने के लिए। पूरे डिपार्टमेंट्स आए, देखो यहाँ पे सेल्स भी आए, यहाँ पे परचेसिंग, सब आए डिपार्टमेंट्स, फिर भी आप पिक नहीं कर रहे थे वहाँ पे, मगर पूरे आ गए। आपको डिफॉल्टली क्या होना, एक बेसिक डेटा होना था मेरे को, होना है तो सेकंड भी क्लिक कर लो। परचेसिंग एक हमेशा कंपलसरी है मेरे लिए, और उसके बाद जो है अकाउंटिंग पे मैं जा रहा हूँ। कैन यू गो डाउन, जनरल प्लांट एंड स्टोरेज, स्टोरेज का ये है भाई, ये हमेशा एक पिक करो। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, फर्स्ट वाला बेसिक डेटा 1 है, 2 जरूरत नहीं है, मैं एडिशनली पिक कर लिया, इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप। परचेजिंग इंपॉर्टेंट था हमारा, जनरल प्लांट एंड स्टोरेज डेटा पिक कर लिया मैं, अकाउंटिंग 1, ओके अकाउंटिंग 2 भी लगा लो, ओके एडिशनली मैं दिखा रहा हूँ, ये भी ऐड कर लो, ये 2 काम भी हो जाते हैं। बकाया चीजें कहीं कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वेयर हाउस सेलेक्ट नहीं करते। वेयर हाउस की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि वेयर हाउस मैनेजमेंट का मॉड्यूल नहीं डिस्कस करा है। वेयर हाउस मैनेजमेंट पिक करे तब क्या है, स्टोरेज बिन से पिकिंग एरिया सब डिस्कस करना पड़ता है, सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एमएम को खाली अपने परचेसिंग में सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टोरेज भी चेक करा, देखो ये देखो जनरल प्लान डेटा, स्टोरेज डेटा। जनरल प्लान डेटा बोले तो क्या है, ये कॉमन है एमएम के लिए भी डब्ल्यूएम के लिए भी। अगर सिर्फ डब्ल्यूएम वाले को होना है बोले तो उन्हें ये दोनों पिक कर लेता, मेरे को जरूरत नहीं है अभी वो, और वी डोंट नीड इट। बेसिकली जब भी कोई भी मटेरियल बनाते रियल टाइम में कहीं भी हो, ये 4 चीजें हमेशा सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडिशनली क्या करते, सेल्स का कर लेते, सेल्स वाले ऐड कर लेते, अपन सेल्स वाले नहीं है ना, सो वी वुडंट पिक इट, ओके। अब मैं क्या करूं, फिर एंटर मार दे रहा हूं। यहाँ पे एंटर मारो तो क्या पूछ रहा है, देखो भाई आप कौन से प्लांट में ये मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, वो पूछ रहा है। हमेशा जो है मटेरियल जो है वैल्यूएड कौन सा लेवल में होता है बोलो तो प्लांट लेवल में होता, तो आप कौन से ये मटेरियल को कौन से प्लांट में क्रेडिट करना चाह रहे हैं पूछ रहा है। अपने पास एक ही मटेरियल, एक ही प्लांट है ना भाई, वो प्लांट को सेलेक्ट कर लो। कितने की प्लांट है अपने पास, ओके। अपना प्लांट क्या है याद है किसी को, TAH1 टीए, देखो याद नहीं है तो स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना TAH1। सोलर लोकेशन याद है भाई, SL H1, ओके। SLH1 एंटर मार दिया, राइट। अब आया अपन बेस डेटा 1 में, फर्स्ट टैब में आए, पूरे टैब्स आए देखो यहाँ पे, मगर अपने को जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मटेरियल बनाने के लिए वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट के बाद देखो यहाँ पे ऐसा बॉक्स दिखता है आपको, ये मैंडेटरी है बोले से, यहाँ पे बॉक्स जो दिख रहा ना, दैट मींस इट इज मैंडेटरी। तो बेस यूनिट ऑफ मेजर अपन क्या क्रिएट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मटेरियल का नाम क्या था, टायर्स ना, ओके टायर्स। उसमें अपोलो भी है, मेरे लिए कोई सी भी कंपनी हो सकती है, टायर्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद बेस यूनिट ऑफ मेजर, ये देखो नंबर रेंज क्या लिया भाई उन्हें याद है, मटेरियल नंबर ले लिया, देखो ऑटोमेटिकली क्या नंबर लिया, सीरीज 4 सीरीज का, बोला था हमने, याद है 4 सीरीज का लिया था हमें, 4 सीरीज का लिए थे अपन। तो पहला नंबर देखो ये ले लिया, और एक मटेरियल बनाया तो कौन सा नंबर लेता उन्हें, 0001 लास्ट टायर्स के लिए मेरा ये नंबर है, याद रख लेना, बेस यूनिट ऑफ मेजर। अगर अपन नंबर आसान नहीं करे तो क्या नंबर लेता हूँ डिफॉल्ट ऑलरेडी ऊपर एसएपी वाला ऑलरेडी 2 नंबर है जो क्रिएट करके रखा, देखो वहां पे सीरीज 1 सीरीज में एक है, और एक कुछ 1 सीरीज में एक था ना, वो 1 सीरीज में से ले लेता हूं जो नंबर ऑलरेडी ऊपर है। उसके बाद अपन 2 सीरीज अपन बनाए थे, 3 और 4 सीरीज अपन बनाए थे, जो भी सीरीज बनाए वो लेता, जो नहीं बनाए तो प्रीवियसली जो ऑलरेडी एसएपी में वो ले लेता डिफॉल्ट। तो बेस यूनिट ऑफ मेजर, टायर को कैसा मेजर करते हैं भाई, किलोस में करते हैं या पीसेस में करते हैं, पीसेस पीसेस, ओके। तो पीसेस यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहते हैं, आपको कोई भी चीज यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिए हर चीज रहता है यहाँ पे। देखो अब देखो कुछ शीट खरीद रहा हूँ तो मैं स्क्वायर इंच क्यूबिक इंच में काउंट करता हूँ उसको, तो इसके लिए वो जरूरत है। अब देखो मैं यहाँ पे पीसेस में जाना, पीस कहाँ दिख रहा है, देखो ये देखो ये क्या है, मीटर पर पीस है शायद हो, सो पीसेस बल्कि रहता है यहाँ पे, लेट मी चेक दैट। ईच टायर, ईच में काउंट करता हूँ ना मैं, एक एक ईच, कितने कितने टायर होना पड़ता है, मैं 10 बोलता, 10 अलग अलग टायर ईच भी क्लिक कर सकता हूँ मैं। एंड इफ यू हैव एनी इंडिविजुअल पीसेस 1 पीस बोल के है तो वो भी क्लिक कर सकते हैं अपन। If it is not there, then we can pick that. Let me check it. 1 बोल के जो है वो 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक आइटम के साथ आता 1 हाँ पीसेस है। आ गया पीसेस, ये देखो पीसेस, पीस आ गया यहाँ पे पीसेस। कितने पीसेस भाई, कितने टायर आना बोलते पीसेस के हिसाब से, टायर एक पीस। मटेरियल ग्रुप पूछ रहा है भाई, अब देखो अब मटेरियल ग्रुप की हमारी जरूरत है यहाँ पे। जो मटेरियल ग्रुप बनाए थे, क्या बनाए थे भाई, सेमी फिनिश पेंट्स बनाए थे अपन खाली, नहीं मटेरियल ग्रुप बोलो मैं, ग्रुप अभी जो बनाए थे, मगर अपना पेंट यूज नहीं कर सकते। टायर से बोले तो क्या है, रबर मटेरियल भी हो सकता है, या ना तो जो है देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो यूज कर लेंगे, स्टील शीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल केबल्स है, मिसलेनियस है, इंजन है, पंप्स है,
सेंट्रीफ्यूगल पंप से, लैपटॉप से, केसिंग से, मदरबोर्ड से, इसमें कुछ भी आपको रिलेवेंट दिखा तो यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं आप, नहीं दिखा तो कुछ भी नहीं मिला तो मिसलेनियस लगा देना, नहीं बोलो तो एक मेटल ग्रुप बना ले सकते हैं आप, आसान कर ले सकते हैं, योर विश। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। केबल, लैंड, डेस्कटॉप, बैटरी, हैंडल्स, कहीं रबर मटेरियल्स वगैरह है क्या, देखो कुछ भी रिलेवेंट है वी कैन पिक इट अप। रेंटल, विंडो, फ्लोर क्लीनिंग, प्रिंटर, स्टील, पैकेजिंग सर्विसेज, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, स्टील, फर्नीचर, रेस्टरूम, विंडो, पैलेट्स, गैसेस, कूलेंट, ऑयल से सब चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे पूरी चीज़ें आप जो देख रहे हैं हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ग्रुप से एलिवेटर्स बना के ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, मेंटेनेंस है, टूल्स है, वुड्स है, एंड हॉल्स भी है, इसके अंदर ग्लास बॉटल्स भी है, देन ओरिजिनल, जेनरिक्स, एनर्जी, मीडिया, व्हीकल्स, कार, रबर पार्ट्स है, देखिए देखो रबर पार्ट। रबर पार्ट्स मिल गया आपने को। ओके, सो अपना रबर पार्ट है ना भाई, I'll pick this material group। ओके, ऐसे ढूंढ लेना अपन। उसके बाद इसमें कुछ और मटेरियल और अपने कुछ जरूरत है क्या बोले तो देखो एडिशनल चीज़, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अपन नहीं पढ़े तो भी समझ में आता, मगर एक चीज जो एडिशनल बताना चाह रहा हूँ, ओल्ड मटेरियल नंबर बोल के यहाँ पे है, देखो ये कब काम आता बोले तो याद रखिए, वो कंपनी में SAP से पहले कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे या ना तो एक मटेरियल का एक नाम दे देते होंगे, एक मटेरियल को एक कोड देते रहते होंगे, याद है ना, कुछ भी कोड देते अपने एक मटेरियल कंपनी में, पेंसिल से देते, पेन से देते, या नहीं तो क्या होता और एक कुछ भी ERP कंपनी में तो कुछ भी अलग कोड देते होंगे। अब SAP में आने के बाद इन्हें नया कोडिंग दे रहा, तो पुराना कोड मेरे को कैसा याद रखना, कहाँ स्टोर कराना पड़े, तो यहाँ पे रख ले सकते हैं आप ओल्ड मटेरियल नंबर के पास। कभी भी आपको कंफ्यूज हो गया भाई क्या है, एक मटेरियल नंबर याद नहीं आ रहा है इसका, एक मटेरियल को सर्च करना है, तो ये ओल्ड मटेरियल नंबर का मार के भी आप सर्च कर सकते हैं मटेरियल को, याद रखिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज योर ओल्ड मटेरियल नंबर, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है बोले तो ग्रॉस वेट, इसका अगर टायर का ऑलरेडी वेट मालूम है, फिक्स्ड रहता है वेट, तो यहाँ पे वेट आप डाल सकते हैं, ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये अपने को फिक्स्ड नहीं रहता ना भाई, कंपनी को चेंज होता, तो यहाँ पे कुछ भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें थे, वो था बेस यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हेन यू क्रिएट ए मटेरियल, व्हेन यू एंटर इनटू द बेसिक टैब, what are the important or the mandatory fields which you need to highlight or populate, it will be base unit of measure and material group, immediately बोल सकते हैं क्योंकि आपको इजीली याद रहता। ओके, सो नाउ आई विल क्लिक ऑन एंटर। अब मैं एंटर करते कहाँ जा रहा, देखो नेक्स्ट टैब में चले आ रहा है, जो टैब में वहाँ एक्टिवेट करा था, ये टैब में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, खाली आपको दिखाने के लिए बोला मैं। बेसिक टैब 2 में आ गया मैं, यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या प्रोडक्शन इंस्पेक्शन में बोल के, पेज फॉर्मेट है, मीडियम है, ये सब चीजें अपने को क्वालिटी में थोड़ा आती है, थोड़े डब्ल्यू में चले आते, इसमें कुछ भी अपना मटेरियल रिलेटेड है नहीं है। ओके, नाउ नाउ आई विल क्लिक ऑन एंटर अगेन। देखो अगर वहाँ पे कुछ मैंडेटरी होता तो मैं एंटर करते जो नहीं लेता, वहाँ पे कंपलसरी एंटर करो बोलता, तो वहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं था, तो अब एंटर करते मेरे को परचेसिंग में आ गया, मगर परचेसिंग से नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा सकते अपन, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट फील्ड्स रहते। देखो परचेसिंग ग्रुप पूछ रहा है, देखो ऑलरेडी बेस यूनिट ऑफ मेजर ले लिया, बेस मैं आपको बोला एक चीज याद है कि मटेरियल मास्टर में क्लाइंट लेवल कुछ डेटा रहता, प्लांट लेवल कुछ रहता। क्लाइंट लेवल क्या था भाई, बेस यूनिट ऑफ मेजर, वो बेसिक डेटा है ना, वो क्लाइंट लेवल रहता वो, और उसके बाद ये डेटा जो है परचेसिंग ग्रुप वगैरह क्लाइंट लेवल में नहीं रहता, मगर प्लांट लेवल जब आते हैं आप, जब क्या होता है आपको परचेसिंग ग्रुप वगैरह ये चीज की जरूरत पड़ती, साथ ही साथ क्लाइंट में जो डेटा था वो भी लेता है, मतलब देखो बेस यूनिट ऑफ मेजर इसका नहीं था मगर ऊपर का एक्सेस कर सक रहा है, मटेरियल ग्रुप इसका नहीं है मगर एक्सेस कर रहा, क्योंकि क्लाइंट के अंदर है, क्लाइंट के अंदर है तो पूरा इसका हो गया ना भाई, यू कैन यूटिलाइज द डेटा। सो क्लाइंट के अंदर कोई डेटा है, सेंट्रलाइज्ड डेटा है, दैट कैन बी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द कंपनी, कोई भी कंपनी का लो है, तो वो ऑलरेडी आ गया, देखो आप देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे परचेसिंग ग्रुप देना है मेरे को, मैं परचेसिंग ग्रुप बनाया भाई, अगर किसी को याद है यहाँ पे तो बोल सकते हैं मेरे को, नहीं तो अपन सर्च कर लेंगे यहाँ पे। आप लोग याद करना भाई, प्रैक्टिस जब भी कर रहे हैं अपन, जो प्रैक्टिस यहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं, उसको आप लिख के रखिए, सो दैट अपने को इजी रहता। क्या बनाए थे भाई, किसी को याद है? तो परचेसिंग ग्रुप्स बनाए थे अपन, लेट मी चेक, 2-3 बनाए थे शायद अपन। देखो रॉ मटेरियल्स के लिए एक बनाया था परचेसिंग ग्रुप में, फिनिश्ड गुड्स के लिए बनाया था, ऑफिस सप्लाईज के लिए बनाया, तो मैं टायर को क्या समझूं, फिनिश्ड गुड्स समझो ना, HY2 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं। ओके, तो इसकी जिम्मेदारी है परचेसिंग ग्रुप टीम की, वो टायर्स को परचेस करे। ओके, तो अब इसको नोटिफिकेशन चले आता, अरे भाई तेरे को टायर खरीदना है बोल के। ओके, सो ये हमेशा टायर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये परचेसिंग ग्रुप का है। ओके, और इसके अंदर कुछ है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, नथिंग। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखो, परचेसिंग वैल्यू की क्या है बल्कि पूछता हूँ, परचेसिंग वैल्यू की जब भी आप क्लिक करते हैं, आप डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रहते हैं। परचेसिंग वैल्यू की क्या करता है यहाँ पे बोले तो, रिमाइंडर से देखें, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। ओके, ये रिमाइंडर्स क्या है भाई बोले तो, एक पीओ आप रेस कर दिए, किसको बोले तो ये मटेरियल का पीओ रेस कर दिए किसी एक वेंडर को, C8 वाले को, MRF वाले को, उसको बोले कि नेक्स्ट मंथ ये डेट तक मेरे को होना, तो इन्हें क्या करता बोले तो, ये रिमाइंडर्स देखो यहाँ पे
10 डेज में एक रिमाइंडर भेज देता हूँ 10 दिन होते फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर 20 दिन होते भेज देता, थर्ड रिमाइंडर कब 30 डेज को। नहीं भाई मेरे को उतना लंबा नहीं है 15 दिन का रहना बोले तो यहाँ ऑप्शन है देखो, 5 डेज में एक बार रिमाइंडर भेजता, 10 डेज में एक बार भेजता, 15 डेज में एक बार भेजता। नहीं उतना भी टाइम नहीं है मेरे को 10 दिन का चाहिए बोले तो 3 दिन में एक रिमाइंडर भेजता, 6 दिन में एक भेजता, 10 दिन में एक भेजता। तो मैं कुछ भी चूज कर ले सकता हूँ यहाँ पे क्विकली। मैं क्या करता हूँ 15 दिन का टायर्स जो है मेरे को 1 महीने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 15 दिन का रिक्वायरमेंट रख लेता हूँ, मैं थर्ड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक कुछ भी चीज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, परचेसिंग वैल्यू की नहीं भाई मेरे को जो है क्या है, मेरा आइटम जो खरीद रहा हूँ मैं टायरा, ये टायरा सिर्फ जो है 10 दिन में डिलीवरी करने के लिए थी। 10 दिन में जो है पहले 3 दिन में एक रिमाइंडर जाना, नेक्स्ट 6 दिन में एक रिमाइंडर जाना उसको सेलर को सप्लायर को, बाद में बोलो तो ये सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। देखो कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरी मर्जी। ओके, आई डू हैव दैट ऑप्शन। उसके बाद अब मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर चेक द डेटा फॉर द परचेसिंग वैल्यू की। ओके, वार्निंग है वो। ओके चलो एंटर कर दो। नेक्स्ट अभी देखो, अभी कौन से पास आए भाई, प्लांट डेटा एंड स्टोरेज लोकेशन। अब स्टोरेज का डेटा आ गया यहाँ पे। अब ये स्टोरेज बिन जो पूछ रहा है ये सब चीजें, ये किसके लिए है, टेम्परेचर कंडीशन स्टोरेज बिन, ये वेयरहाउस वाला करता है, ये आप एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, और कुछ है क्या यहाँ पे अपन एक्टिवेट करने का, कुछ भी नहीं है। देखो बैच मैनेजमेंट बोल के है, बैच डिस्कशन जब करते हैं ना, ये मटेरियल को ओपन करके यहाँ पर टिक करना रहता है आपने को, बैच मैनेजमेंट। जब भी जो है ये मटेरियल को बैचेस में कर सकते हैं। ओके, बैचेस बोलो तो क्या टायरा बैचेस में आते क्या भाई, नहीं आते ना, सो वी डोंट नीड दिस। अगर कुछ ऐसी मटेरियल है जो बैचेस में आता तो यू कैन एक्टिवेट द बैचेस ओवर देयर। ओके सो दिस इज द वन। ओके, यहाँ पे एंटर मार के देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है, देन वी कैन गो। एंटर मारा मैं, कहाँ पे आ गया भाई, अकाउंटिंग 1 में आ गया, दैट मींस वी डोंट हैव एनीथिंग टू स्टोर देयर। अब देखो मैं अकाउंटिंग 1 में आया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है अकाउंटिंग 1 में। देखो क्या क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन क्लास। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यूज में मटेरियल बनाते हैं जब क्या क्या पूछता उन्हें, मटेरियल ग्रुप पूछता कहाँ है बल्कि, और बेस यूनिट ऑफ मेजर आप जो दिए उसके बारे में पूछता उन्हें। ओके, उसके बाद परचेसिंग में जब आते हैं, परचेसिंग में क्या क्या दिए थे भाई, अपन परचेसिंग ग्रुप पूछता वो कहाँ, परचेसिंग ग्रुप कहाँ रहता बोल के पूछता, हम बोलना परचेसिंग में रहता। एक वैल्यूएशन क्लास कहाँ देते बोले तो यहाँ देखते हैं। वैल्यूएशन क्लास क्या है भाई, ये देखो हर मटेरियल टाइप के वैल्यूएशन क्लास रहता है, याद रखिए। वैल्यूएशन क्लास बोले तो क्या है, कई को वैल्यूएशन क्लास कहाँ पे यूज होता है, अकाउंटिंग का है ना हमारे, कई को बोले तो ये एक चीज खाली याद रहना आपको, जनरल लेजर्स बोल के रहता है, जनरल इंटरेस्ट, जनरल लेजर्स बोल के। ओके, जीएल अकाउंट बोलते हैं अपन, जीएल जीएल बोलते क्या है, जनरल लेजर है। जीएल अकाउंट्स कभी भी क्या रहता है बोले तो एक एक टाइप ऑफ मटेरियल को एक एक जीएल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं कंपनीज के अंदर, ताकि बोले तो उन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, अकाउंटिंग जो है इजी करने के लिए हर मटेरियल टाइप की एक वैल्यूएशन क्लास असाइन करते हो। यहाँ पे अपन आप ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको दो ही वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे पिक कर दी, दिखा रहा, क्या दिखा रहा, एक 7950 7925, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है ये, क्योंकि ये जो स्पेयर पार्ट आप जो बना रही हैं ये इट इज अ काइंड ऑफ ए फिनिश्ड गुड्स है ना, तो इन्हें ये दो क्लास दे रहा। इफ इट इज ए रॉ मटेरियल, याद रखिए 3000 सीरीज देता, 3000 3000 3000 सीरीज में रहते। अगर क्या बोलते हैं फिनिश्ड मटेरियल है तो 7920 7925 ऐसा रहता। ओके, उसके बाद अगर सेमी फिनिश्ड है आपके पास तो 7910 रहता, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आगे। तो मटेरियल टाइप के हिसाब से जो है यहाँ पे उन्हें क्या क्लास देता, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मालूम है, 7920 चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो सेक्शन में वैलिड होता है, उन्हें जो बैकग्राउंड चेक कर लेता कि जब भी आप ये मटेरियल के ऊपर पोस्टिंग्स होते ये वैल्यूएशन क्लास पिक करके वो बैकग्राउंड के जीएल अकाउंट में पोस्ट कर लेता है। अकाउंटिंग इंटरेस्ट जो भी आप खरीद रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें वहाँ प्रेस कर लेता। प्राइस कंट्रोल तो दे दिए अपन यहाँ पे, प्राइस यूनिट दे दिए। ओके चलो, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन एंटर। यहाँ पे देखो आप, ये देखो प्राइस कंट्रोल है यहाँ पे। प्राइस कंट्रोल क्या क्या है भाई, एक रहता स्टैंडर्ड प्राइस रहता, दूसरा मूविंग एवरेज प्राइस रहता। ओके, मैं आपको बोला जो चीज़ आप खरीद रहे हैं फॉर दैट यू नो इट विल बी स्टैंडर्ड प्राइस। मूविंग एवरेज प्राइस किसको रहता, जो चीज़ आप सेल कर रही। ओके, तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप खरीद रहे हैं, यू कैन पिक एनीवन, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। क्लाइंट बोला कि भाई आपको मेरे को स्टैंडर्ड प्राइस रखो तो स्टैंडर्ड प्राइस रखेंगे, नहीं मूविंग एवरेज प्राइस बोला तो मूविंग एवरेज प्राइस आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मूविंग एवरेज प्राइस में क्या है, वैल्यू जो है जब भी वेरिएंट होता उन्हें अकाउंट्स में पोस्ट कर लेता, उन्हें वो डिफरेंस वैल्यू पोस्ट कर लेता। तो मैं व्हाट आई विल डू इज लाइक कैलकुलेट के स्टैंडर्ड प्राइस, अब एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंटर है स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस एंटर करो बोल के बोला, स्टैंडर्ड प्राइस बोल रहे ना, तो फिक्स्ड प्राइस क्या है बोल के पूछ रहा। सो नाउ आई एम एंटरिंग ए प्राइस। एक टायर का स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो सकता है भाई बोलो, एक एवरेज प्राइस बोलो, एक एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। एक टायर नया खरीदते अपन कार का 6000 2000 नहीं रहता भाई, 5000 से 6000 रहता कार का हाँ कार का। अगर बाइक का बोले तो रहता तो 5 से 6000 रहता। तो व्हाट आई विल डू इज लाइक मैं एक फिक्स्ड प्राइस एक स्टैंडर्ड प्राइस 6000 डाल दे रहा हूँ, तो उन्हें क्या करता था एक एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस समझता कि एक टायर का 6000 है बोल के। ओके, एंटर डाल दिया मैं। ओके चलो हो गया बस। ये टैक्स प्राइस वगैरह ये सब चीजें कौन करते भाई, अकाउंटिंग वाले करते, अपने कुछ है यहाँ पे नहीं है। अब देखो आप मटेरियल सेव करे तो अगर कुछ डेटा अपन मिस करे होगा तो इन्हें बोल देता भाई कि आप वो डेटा मिस करे बोल के। नाउ आई एम सेविंग इट।
अब देखो क्या हुआ भाई यहाँ पे, मटेरियल हैज बीन क्रिएटेड, वेरी गुड, एक मटेरियल बन गया देखो आपका। ओके अब देखो, चलो ऑलरेडी 10-9 हो गए। सो और भी मटेरियल बनाएंगे बोले तो इंशाल्लाह कल एक मटेरियल बनाता हूँ मैं, नहीं तो और एक बना बोले तो फास्ट फास्ट में बना देता हूँ मैं। देखो और एक मटेरियल बना रहा हूँ मैं, देन विल स्टॉप इट। इज इट फाइन? और एक मटेरियल बनाओ या रोक देंगे हम लोग? कल करेंगे अगर भाई कल करेंगे क्योंकि बोले तो कल अभी तो करेंगे। देखो ना बना के कल ओके, एक और चलिए बनाएंगे। कल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ तक देख के आप प्रैक्टिस करिए। अब समझ में नहीं आता ना, फिर मैं कल एक मटेरियल बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट? सर भाई हाँ। थोड़ा ये वीडियो अफजल शेयर भाई। करिए और पीपीटी भी शेयर करिए ना। डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, पीपीटी जो है अभी डाल देता हूँ मैं। और हमारे जो